Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Today we will revise chapter 5, nouns in grammar. In your grammar, first of all, Good morning, ma'am. tell me what is noun. What is a noun? What is noun? Ma'am, package proper and common. What's the definition of noun? Definition of noun. Ma'am, again. Yes, Dia. Ma'am, naming words are called nouns. Like? Ma'am, again. Yes, Kathy. Naming words for person, thing, animal, Yes. place, or useful facts are called nouns. I told you simple definition. The name of a person, place, animal, thing. The name of a person, place, animal, thing is called nouns. This is The simple. names are called nouns. Yes. The names of persons, animals, place or things are called nouns. किसी person का name, some animal's name, thing's name and place name. Okay, these are called nouns. Now tell me some nouns. Rini? Ma'am, Yes, School pan. bag. Okay. मैम पहले स्कूल मैम आपके ना स्कूल में दिया Okay. लायन Yogeshwari. Yogeshwari, two nouns. Tell two nouns. Anything you can speak. Person's name. Yes. Good morning. Person's name. Thing's name. Animal's name. Bird's name. You can speak. Two nouns. Two naming words. Tell one by one. Two naming words. Fast. Yogeshwari. Yogeshwari. मैम टाइगर Yes. Place name. You can speak place name. मैम Speak. टाइगर एंड ताजमहल Okay. The Taj Mahal. Okay. Khyati, you speak. Khyati, यस मैम speak fast. एंड दिया Okay. Sahil, Sahil, speak fast. यस मैम Two naming words. Nouns. You can यस speak. मैम There are many things you can speak. Nouns. Two nouns. मैम आई कैन बी Janvi, you speak. Janvi. मैं नाउ Sahil, आगरा Agra and Jaipur. Okay. Jaipur you can speak. Many things are there. Sahil, आपके पास बहुत सारी बेटा आपके पास बहुत सारी चीजें पड़ी है वो भी बोल सकते हो आप. You can speak things name. You can speak place name. Room, आप रूम में बैठे हो. Kitchen, house, garden, park. Many things. आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो. Person's name, आपका नेम बोल सकते हो. आप अपने फ्रेंड्स का नेम बोल सकते हो. Animals name. साहिल, you don't know animals name. बेटा आपको इतनी सी चीजें सोचने में कितना टाइम लगाते हो. एनिमल्स नेम, कितने सारे एनिमल्स हैं. ओके, इज दैट क्लियर? प्लेस, पर्सन्स एंड थिंग्स एंड एनिमल्स नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स. ओके, इज दैट क्लियर? व्हाट इज नाउन? इज दैट क्लियर? ओके, टाइप्स ऑफ नाउन्स. नो, इट्स ओके. टाइप्स ऑफ नाउन्स. अब we will read about types of nouns. अब nouns कौन से तरह के होते हैं? Proper, first of proper and common nouns. Okay? Proper nouns means a special name of someone. किसी का special name. कोई भी building है, कोई place है, city है, किसी का भी जो particular name होता है, that is called proper noun. Special name is proper noun and common name is common noun. Common means like yes.
मैम जैसे कि मथुरा, चेन्नई। Girl. Sita is girl, but girl word is common because we can say many. If many girls are there in a class, every girl is girl. सबको हम गर्ल बोलते हैं. So girl is common, but सीता, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर गर्ल का नेम लिया लाइक जानवी, मैंने बोला जानवी, जानवी इज अ गर्ल, तो गर्ल इज कॉमन क्योंकि ख्याति भी गर्ल है, दिया भी गर्ल है, प्रीनी भी गर्ल है, विदुषी इज गर्ल, जानवी इज गर्ल, योगेश्वरी इज गर्ल. सो गर्ल वर्ड इज कॉमन, बट सीता एंड योगेश्वरी, जानवी, दीज आर प्रॉपर नाउन. ओके, स्पेशल नेम है ये इनके गर्ल्स के. लाइक बॉय, रोहन, रोहन किसी बॉय का स्पेशल नेम है. एंड बॉय वर्ड इज कॉमन क्योंकि बॉय हम सबको बोलते हैं, तो जो सबके लिए यूज होता है दैट इज कॉमन, और जो एक के लिए यूज होता है दैट इज प्रॉपर. दिस इज वेरी सिंपल. ओके, एकदम सिंपल है ना, ये समझ में आ गया, प्रॉपर एंड कॉमन. ओके. ताजमहल, जैसे मैंने ताजमहल इज अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो हम सबको बोलते हैं. आपकी किसी कोई बिल्डिंग में रहता है उसको भी बिल्डिंग बोलते हैं. ये लाल किला को भी बिल्डिंग बोल सकते हैं, मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं. बट द ताजमहल, मैंने एक स्पेशल बिल्डिंग का नेम बोला, दैट इज प्रॉपर. इज दैट क्लियर? ओके. The definition of noun and common and proper nouns. Jay, have you understood? Adhyan? Yes, ma'am. Adhyan? Okay. Is that clear? Nouns, definition of noun. Again revise one time definition of noun. Don't on your speaker. आप मेरे साथ revise करेंगे. The names of persons, animal, place, things are called nouns. 2 times revise this. The name of. Yes, 1 minute Kathy, or off your speaker. आप speaker off करके बोलेंगे, others are disturbing बेटा. Okay, the names of persons, places, animals, things are called nouns. Revise this. The names of persons, places, animals and things are called nouns. Again, one time, the names of persons, places, animals, things are called nouns. किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, कोई भी प्लेस हो, एनी प्लेस, क्लासरूम, स्कूल, गार्डन, रोड, पार्क, हॉस्पिटल एंड जयपुर सिटी, कोई भी प्लेस का नेम. यस Ma'am, where is the definition of noun? I am telling beta, in your book also there, on first page, chapter 5 first page. Okay, so the names of persons, any person's name, किसी भी पर्सन का नेम, कोई भी नेम जो हम बोलते हैं पर्सन के लिए, फादर, मदर, ब्रदर, बॉय, गर्ल, वुमन, मैन, जानवी, ख्याति, अध्ययन, जय, ओके, साहिल, योगेश्वरी, दिया, कोई भी हम नाम लेते हैं किसी भी पर्सन का, दैट इज नाउन. ओके, वो नाउन होता है. नेमिंग वर्ड है, ये किसी का नाम है. फादर है, ये फादर का नाम है. प्रियांशी, प्रियांशी गर्ल का नेम है. सो दीज आर नेमिंग वर्ड्स. इज दैट क्लियर? ये आपको अच्छे से लर्न करनी है. नाउन्स, व्हाट आर नाउन्स? ओके, व्हाट आर नाउन्स? द नेम ऑफ योर स्पीकर्स, the names of persons, places, animals, things are called nouns. Is that clear? Okay. Now, proper and common nouns. Have you understood? Proper nouns, special name. Common noun, that is common. We can use for many persons, animals, places, things. हम बहुत सारे लोगों के लिए वो यूज कर सकते हैं. That is common noun. Okay. Now next is countable and uncountable noun. Okay. You have a book. आपके पास बहुत सारी बुक्स है. You can count them. आपके पास पेंसिल्स है. You have pencils. You can count them. काउंट कर सकते हो ना पेंसिल्स को, बुक्स को, पेन, बॉक्सेस, बॉक्स. आपके पास बॉक्स है. अगर 2 बॉक्स है, you can count them 1 and 2. एंड बैग, आपका बैग है, आप उसको भी काउंट कर सकते हो. At your home, glasses in the kitchen,
मेनी क्लासेस आर देयर, हम उनको काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट देम। ठीक है, तो जो नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, दीज आर काउंटेबल नाउन्स। एंड अनकाउंटेबल, जैसे मिल्क, मिल्क को हम काउंट, जैसे आप ये नहीं बोलते ना मुझे एक दूध दे दो, ऐसे नहीं बोलते ना, एक उसको हम काउंट नहीं कर सकते, एक दूध है, दो दूध है, तीन मिल्क है, चार मिल्क है, ऐसे नहीं बोलते ना। वाटर है, वन वाटर, टू वाटर, ऐसे नहीं बोलते। सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। राइस, जैसे आप चावल खाते हो तो चपाती, आप चपाती को काउंट कर सकते हो, वन चपाती खाते हो, टू चपाती खाते हो, बट यू कांट काउंट द राइस। राइस को काउंट नहीं करते ना अपने खाने में, दाल को काउंट नहीं करते। दीज आर कॉल्ड These are called uncountable nouns. Rice, milk, water, जो इनको हम काउंट, जो भी नाउन है उसको जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया ना? काउंटेबल नाउन्स में जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस। हेयर, हेयर इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? हेयर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ओके, नॉइज, 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 आवाज, नॉइज, अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल। मैम अनकाउंटेबल। पेंसिल्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? काउंटेबल। ओके, ब्रेड, ब्रेड, मैम काउंटेबल। समटाइम्स ब्रेड काउंटेबल भी होती है, समटाइम्स अनकाउंटेबल भी होती है। शुगर, शुगर अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल। फ्लोर, फ्लोर, FLOWR, फ्लोर मीन्स आटा, आटा, फ्लोर अनकाउंटेबल। ओके, सॉल्ट, सॉल्ट, salt, salt, uncountable. Okay, now spoon, spoon, countable, countable. Okay, cereal, cereal, uncountable. Cheese, cheese, काउंटेबल। no. A slice of, अगर आप बोलते हो a slice of cheese, तो वो स्लाइस वर्ड काउंटेबल है, बट चीज काउंटेबल नहीं है। ओके, चीज इज अनकाउंटेबल। ओके, बॉटल, बॉटल्स काउंटेबल, बॉटल्स आर काउंटेबल। ओके, डॉग, डॉग काउंटेबल। काउंटेबल। Non-countable. Oranges, countable. Non-countable. Is that clear? Countable and uncountable. Okay. Yes, ma'am. Yes, Next is abstract noun. Abstract noun means the noun we can see but feel and think, जिसको हम देख नहीं सकते। अभी जैसे आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा, उनको हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैम, बट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वी कैन सी, लाइक ऑनेस्टी, लाइक मैंने बोला दिया इज अ ऑनेस्ट गर्ल, ख्याति इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो उनकी ऑनेस्टी आपको दिख रही है? दिख रही है? कैन यू सी? नो, वी कांट सी। आप उसको फील कर सकते हो, जब वो ऑनेस्टी दिखाते हैं आप उसको फील कर सकते हो, बट हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, वी कांट टच द नाउन्स, वी कांट टच एंड
वी कांट सी बट वी कैन फील एंड थिंक। उनकी ऑनेस्टी के बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ वो ऑनेस्ट है, हम उसको फील कर सकते हैं, वी कैन फील देम, बट वी कांट टच एंड सी। जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हिंदी में आप बोलते हैं ना भाववाचक संज्ञा, जो एक अंदर की फीलिंग होती है, वो हमारे अंदर की फीलिंग, इट कम्स फ्रॉम आवर सेल्स, हमारे अंदर से जो आती है फीलिंग्स, ओके, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, लाइक काइंडनेस, हैप्पीनेस। जब आप हैप्पी होते हो, आपको पता है, आप फील कर सकते हो, बट हम इसको टच नहीं कर सकते कि वो हैप्पी है, हैप्पीनेस है, उसकी हैप्पीनेस को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे अंदर की फीलिंग होती है। ठीक है, वो हमारे अंदर से आती है, इट कम्स फ्रॉम अवर सेल्स, अदर्स फ्रॉम अदर्स, किसी के अंदर से आती है, हमारे अंदर से भी, दूसरे के अंदर से भी, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। हैप्पीनेस, कोई हैप्पी है, उसकी हैप्पीनेस को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन टच। ओके, so this is called abstract nouns. Understood what is abstract noun? This is called abstract nouns. Okay, truth मतलब सत्य। कोई ट्रूथ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, हमें पता है वो सत्य है, बट हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको फील कर सकते हैं। वी कैन फील ओनली, वी कांट टच। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथ, विजडम, किसी की बुद्धिमानी। ऑफ योर स्पीकर्स प्लीज, ऑफ योर स्पीकर एवरीवन, the sound is coming. Tanveer, off your speaker, others are disturbing beta. Oh, okay. Understood what is abstract noun? Yes, ma'am. Okay. We can't see but feel and think, this is called abstract noun. Now material nouns. Material means the things we can use making in other things, जो चीजें हम other things are made of, जिससे हम दूसरी चीजें बनाते हैं, like wood. wood से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। wood का पहले एक ब्लॉक आता है, पूरा एक लॉग होता है, उससे हम उसको कट करके फर्नीचर बना सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के चीजें बना सकते हैं। सो वुड, रबर, ग्लास, ग्लास से हम विंडोज बनते हैं, गेट पे लगते हैं ग्लासेस। ग्लास दैट इज वो ग्लास नहीं जिससे हम पानी पीते हैं, ग्लास मीन्स कांच, कांच जिसको बोलते हैं, तो वो होते हैं मटेरियल नाउन्स। ओके, रबर, रबर से बहुत सारी चीजें बनती है, अलग अलग टाइप की, टायर बनते हैं, ट्यूब्स बनते हैं, रबर ट्यूब बनती है। ठीक है, रबर से, तो रबर इज मटेरियल नाउन। जो चीज से हम दूसरी चीज बना सकती हैं, वी कैन मेक अदर थिंग्स, वी कैन मेक अदर थिंग्स। ठीक है, जिनसे दूसरी चीजें बनती है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वो मटेरियल नाउन होता है, उससे हम बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें बना सकते हैं। जैसे क्लोथ, क्लोथ इज मटेरियल, क्लोथ भी मटेरियल है। एक क्लोथ से हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, एक बड़ा सा क्लोथ है, उससे बहुत सारी अलग अलग चीजें बनती है। ठीक है, मैम वुल भी मटेरियल है ना? यस मैम वुल भी मटेरियल है ना? यस, वूल इज मटेरियल, टीन इज मटेरियल, टीन से अलग अलग टाइप की चीजें बनती है। वुड इज मटेरियल, रबर इज मटेरियल, दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। ओके, जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं। अंडरस्टूड मटेरियल नाउन्स? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Now collective nouns. Last one is collective nouns. Collective nouns means when there is a collection of same things. एक सी चीजों का जो एक कलेक्शन होता है, लाइक रोड पे बहुत सारी काउस जा रही है, तो वो सेम काउस है, सब काउ है, तो उनको जो एक उनका पूरा वो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम बोलेंगे हर्ड, हर्ड ऑफ काउस। तो उनका एक, सबका एक अलग अलग नेम होता है। लाइक किसी हाइव में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्वैम ऑफ बीज, स्वैम उनका छत्ता, जैसे मधुमक्खी का छत्ता, उसको हम बोलेंगे स्वैम।
स्टार्स, हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं ना आसमान में, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर, स्टार्स को हम बोलेंगे क्लस्टर। फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं एक साथ ऐसे, हम बांध देते हैं उनको, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड? क्लस्टर। क्लस्टर, फ्लावर्स, फ्लावर्स का। आप किसी को फिर कोई आप फ्लावर्स लेके जाते हैं हम लोग बहुत सारे, इतना बड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं? यस, बुके ऑफ फ्लावर्स, हम उसको बुके बोलते हैं ना। क्लस्टर स्टार्स को बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, बुके ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, एक चाबियां हैं बहुत सारी एक साथ बंधी हुई, उनको क्या बोलेंगे? बंच ऑफ कीज। अच्छा, बहुत सारे, यस, बहुत सारे ग्रैप्स है एक साथ लटके हुए, एक डंडी से लटके हुए ग्रैप्स है बहुत सारे, बंच ऑफ ग्रैप्स। ओके, मैंने जंगल में बहुत सारे वुल्फ्स जा रहे हैं एक साथ, उसको क्या बोलेंगे? पैक ऑफ वुल्फ्स, पैक ऑफ वुल्फ्स, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी लकड़ियां बंधी हुई है एक साथ, एक बंडल है, उसको क्या बोल देंगे? बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है। तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। बहुत सारी ये प्लेयर्स हैं हमारे, ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं एक साथ जब वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम बोलते हैं ना। इंडिया की टीम है ना एक, उसमें बहुत सारे 15 प्लेयर्स होते हैं, उसको टीम बोलते हैं हम, इंडियन टीम ऐसे बोलते हैं ना, टीम। ओके, प्लेयर्स बहुत सारे, सॉरी, ये सिंगर्स, अ बैंड ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स बहुत सारे एक साथ गाते हैं, उसको बोलते हैं बैंड ऑफ सिंगर्स, ठीक है। बहुत सारे चोर एक साथ जा रहे हैं कहीं पे चोरी करने, उनको क्या बोलेंगे? उनका क्या होता है वो? गैंग, गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की गैंग ऐसे बोलते हैं ना। अरे बाप रे, तो चोरों की गैंग आ गई पूरी, तो गैंग ऑफ थीव्स, ठीक है। तो ये दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। ओके, ये सब कलेक्टिव नाउन्स होती हैं। शिप्स, बहुत सारे शिप्स जा रहे हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स, उनको बोलते हैं फ्लीट। बंच ऑफ कीज, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स हैं बहुत सारे एक साथ, सब सोल्जर्स खड़े हैं, उनको हम पूरे सोल्जर्स को जब मिलाएंगे उनको एक वर्ड होगा उनके लिए, आर्मी, वो हमारी आर्मी है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। फिश, बहुत सारी फिश है समुद्र में एक साथ, फिश मूव करती है, बहुत सारी छोटे छोटे फिश, कभी देखा है? पूरा ग्रुप, उनका पूरा झुंड होता है, उसको बोलते हैं shoal of fish, shoal। ओके, पैक ऑफ डॉग्स, जब डॉग्स बहुत सारे रहते हैं उसको पैक ऑफ डॉग्स बोलते हैं। पैक ऑफ वुल्फ्स भी होता है, पैक ऑफ डॉग्स भी होता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स भी होता है, हर्ड ऑफ काउस भी होता है, ठीक है। उसको हम हर्ड बोलते हैं, गायों का झुंड, हर्ड ऑफ काउस, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड? कलेक्टिव नाउन्स अंडरस्टूड? कलेक्टिव नाउन समझ में आया सबको? ओके, अच्छा, लोग जा रहे हैं बहुत सारे एक साथ रोड पे, खूब सारे लोग हैं, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का क्राउड, ठीक है। अंडरस्टूड? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, ठीक है। वन मोर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो जो भी ये प्रॉपर और कॉमन नाउन होते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। कॉन्क्रीट नाउन में सब नाउन्स आते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, सॉरी, जिनको हम देख सकते हैं। यस, यस बेटा, स्पीक। व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना कितनी देर तक, तब आप क्या कर रहे थे? आपने सुना नहीं था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज लाइक काइंडनेस, कोई दयालु है तो हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जो नाउन को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, कोई ऑनेस्ट है, आपके फादर ऑनेस्ट है, लेकिन हाँ, आप उनकी ऑनेस्टी देख सकते हो? नो।
फील कर सकते हो ना, थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में. सो जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील, वी कैन थिंक, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके योगेश्वरी, अंडरस्टूड. काइंडनेस, जैसे ट्रूथ, सच्चाई, किसी की सच्चाई, ऑनेस्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस. आप हैप्पी हो बट आपकी हैप्पीनेस दिखती नहीं है ना, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं. आप कभी कभी बहुत हैप्पी हो बट वी कांट टच, वी कांट टच एंड वी कांट सी, बट वी कैन फील दिस. हम उसको फील कर सकते हैं. आप हैप्पी हो, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में, हाँ ये हैप्पी है, बट वी कैन नॉट सी. तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके अंडरस्टूड नाउ योगेश्वरी, हैव यू Yes, अंडरस्टूड? ma'am. Okay, the chapter is over now. I think you have understood nouns chapter properly. Okay, Yes, the ma'am. class is over now. Have a nice day. Bye everyone. Goodbye. Okay. Bye.